Students, so we are going to start the basis of accounting. So what are generally basis of accounting? We all follow some rules and regulations to do various things, and same for the accounting करने के लिए भी we need some rules regulations ताकि हम accounting के end goal तक पहुंच पाए. But make sure you know what is the end goal of accounting. It is to find out the profit and loss and compare it with the other years of the profit. At your level, this is the end goal, but you might get different definitions of the end goal of accounting, right? So first is the thing that why we need the basis of accounting. Consistency. What is consistency now? Consistency is something, जैसे कि अगर हम एग्जांपल दें तो अगर हम अकाउंट्स बना रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हैं और हमने 2 साल के अकाउंट्स बनाए, प्रॉफिट्स निकाले, ठीक है. इफ़ वी फॉलो द डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट रूल्स, तो वो सेम नहीं होंगे, हम उन्हें कंपेयर नहीं कर पाएंगे. दैट्स वाई कंसिस्टेंसी इज़ रिक्वायर्ड एवरी टाइम, even in identifying the events and transactions, ठीक है, even measuring them, communicating them, summarizing them. Every time we need a consistency means using a same rule or component every time when we follow the accounting procedure. This calls for developing a proper theory base of accounting. That's why we need the proper theory base, because we need consistency every time, even in identifying the transactions, measuring them, communicating them, and even when we are summarizing them and reporting them. Okay. Now, here we have taken an example. For example, the investors may be interested in knowing the extent of profit or loss earned by the firm during a given period and compare it with performance of similar enterprises. ठीक है, and that is only possible, ये performance comparison, if the similar enterprises uses the same methods, right? For this, the accounting methods of two firms should be similar. Only then the comparison can be possible. So let's take a look of the basis of accounting. It is very broad. Okay, it is very broad. It is not a narrow concept. Accounting is something we accepted as international level. Okay, so let's see the meaning of GAAP. What are these? Generally accepted accounting principles. ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जो हम ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेशनली फॉलो किए जाते हैं, ठीक है. अब प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? वी ऑल नो रूल्स, गाइडलाइंस, ठीक है, that are adopted all over the world for recording and reporting of business transactions. These are adopted to bring uniformity and consistency, because that is what was required ना, यही चाहिए था हमें in the above need के अंदर, ठीक है. तो हम यही इसके अंदर करते हैं, प्रिपरेशन से लेकर everything is done according to these GAAP, generally accepted accounting principles. In simple words, GAAP is a global language of accounting professionals. Now, let's take a look about the basic accounting concepts. You see on the screen there are many various things written in the points: business entity, money measurement, going concern. These all are the concepts. Okay, and we divide further into थ्री थिंग्स. प्रिंसिपल्स को हमने 3 चीज़ों के अंदर आगे डिवाइड किए. अजम्पशंस कि हम क्या मान के चलते हैं, बिजनेस कैसे चलेगा. कंसेप्ट्स कि हमें रिकॉर्डिंग कैसे करनी है. और कॉन्स्ट्रेंट्स कि क्या चीज़ लेनी है अकाउंटिंग के अंदर और क्या चीज़ नहीं लेनी. बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली अकाउंटिंग अजम्पशंस, ठीक है. फर्स्ट assumption इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ठीक है. द कंसेप्ट of business entity says that it assumes that business has a distinct entity from its owners. सिंपल सी बात है, बिजनेस अलग है और उसका ओनर अलग है, ठीक है. आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर यहाँ गिवन है, बिजनेस का जो भी कैश है वो बिजनेस का रहेगा और ओनर का जो कैश है ओनर का है, ठीक है. इन चीज़ों को आपको अलग अलग मानकर चलना है. लेट्स सी द एग्जाम्पल हेयर. When a person brings in some money as कैपिटल के लिए लेकर आता है ना, तो हम उसे लाइबिलिटी की तरह दिखाते हैं. लाइबिलिटी इज समथिंग जो बिजनेस को रीपे करना है वापस से, है ना.
तो दैट इज़ कि हम उसको लाइबिलिटी इसीलिए दिखाते हैं, क्यों दिखाते हैं, बिजनेस एंड ओनर अलग अलग चीज़ें हैं, और ओनर ने जो पैसा दिया वो बिजनेस का नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए उसे बाद में उसे रीपे करना है, उसे चुकाना है, दैट्स वाई वो उसे लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है, इवन एमसीक्यूज़ में भी या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आ जाता है कि हम कैपिटल को लाइबिलिटी क्यों ट्रीट करते हैं, दिस इज़ बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। नाउ नेक्स्ट इज व्हेन द ओनर विड्रॉज एनी मनी फ्रॉम द बिजनेस। ये आपने बेसिक टर्म्स में भी देखा होगा कि ड्राइंग्स क्या होती हैं, जब भी कोई पर्सनल एक्सपेंसेस ओनर निकाल रहा है तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं, यानी वो पैसा निकाल रहा है, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, क्योंकि बिजनेस और ओनर डिफरेंट एंटिटीज़ हैं। The main thing we want to notice here, we should consider that accounting records are made in the book of accounts from the viewpoint of business unit. सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो है अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्डिंग करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, नॉट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ओनर, ठीक है, क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस किसका निकालने वाले हैं, बिजनेस का, ठीक है। दीज ऑल द पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अब ये क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। मनी मेजरमेंट स्टेट्स दैट ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स एंड हैपनिंग्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी, यानी जो मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस की जा सकती हैं सिर्फ वही जो है रिकॉर्ड होंगी बिजनेस के अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। एक और चीज़ है यहाँ पे, अनदर एस्पेक्ट विच इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स, जो भी हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है वो फिजिकल यूनिट्स की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, मॉनेटरी यूनिट की फॉर्म में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपने बोला आपके पास 2 एकड़्स की लैंड है, तो आप अकाउंट्स में ये नहीं दिखाओगे लैंड 2 एकड़्स, आप दिखाओगे कि वो एक्चुअली में है कितनी की, यानी उसकी मॉनेटरी वैल्यू इज इट्स ₹2 crores, तो यू विल शो द ₹2 crores इन अकाउंट्स एंड नॉट द फिजिकल यूनिट्स, ठीक है। इस डायग्राम से क्लियर होता है यहाँ पर कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं उसकी सिर्फ मनी वैल्यू जो है रिकॉर्ड होगी, कोई भी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। इसकी एक लिमिटेशन है, देखिए यहाँ पर प्राइजेस में चेंज होते रहते हैं, लाइक अगर कोई चीज़ 1995 में 2 करोड़ की थी, से एक बिल्डिंग हमने परचेज़ की थी वो 2 करोड़ की थी, और हमने एक प्लांट परचेज़ किया यहाँ पर 2005 में 1 करोड़ का, ठीक है। तो जो मनी वैल्यू के चेंजेस होते रहते हैं यहाँ पर, उसकी वजह से लिमिटेशन ये है कि अकाउंटिंग डाटा जो है ट्रू और फेयर वैल्यू नहीं शो कर पाता, ठीक है। लेट्स से एन एग्जांपल, जब आप छोटे होते थे या कुछ भी होते थे तो जो भी खाने पीने की चीज़ें, से लेस की अगर हम बात करें तो 5 रुपीज़ की अच्छी क्वांटिटी आती थी, 10 रुपीज़ की आती थी, बट अब वही चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, राइट। हमें फील इसलिए नहीं हो रहा बिकॉज पहले भी लेस 5 के थे, अब भी लेस 5 के थे, लेकिन उसके अंदर क्वांटिटी तो कम हुई ना, है ना। सेम है कि अगर आप कोई व्हीकल लेते हैं, तो अगर सपोज़ सिंपल एग्जांपल एक्टिवा की बात करें तो दैट यूज़ टू कम अंडर ₹40,000 to 50,000, बट नाउ उसकी जो कॉस्ट है 60,000 to 70,000 तक वेरी करती है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट मॉडल्स। सो दैट इज़ द लिमिटेशन ऑफ मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। नेक्स्ट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, ध्यान से सुनिएगा। इट एज्यूम्स दैट अ बिजनेस वुड continue to carry out its operations indefinitely for a fairly long period of time, ठीक है। वो ये कहना चाह रहे हैं इसके अंदर कि जो बिज़नेस है, अगर आज आपने स्टार्ट किया तो आप ये तो नहीं कह दोगे ना कि कल मैं बिज़नेस बंद कर रहा हूँ या परसों या 1 साल बाद, नहीं। जब बिज़नेस खुलता है, चलना शुरू होता है, तो हम ये चीज़ मान के चलते हैं कि वो बिज़नेस बहुत लंबे टाइम तक चलेगा और जल्दी से लिक्विडेट नहीं होगा। लिक्विडेट मतलब बंद नहीं होगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ओवर हियर। जब हम कोई एसेट खरीदते हैं, सपोज एसेट इज़ समथिंग जो हमें मॉनेटरी बेनिफिट्स देती है, हम उससे पैसे से खरीदते हैं और हमें उससे बेनिफिट मिलता है, राइट। तो एक आपने पर्सनल कंप्यूटर खरीदा 50,000 का, राइट। व्हाट वी आर बाइंग रियली इज़ द सर्विसेज ऑफ कंप्यूटर,
ठीक है, हम उसकी सर्विसेज ले रहे हैं जो कंप्यूटर हमारे लिए करेगा। हम उसके ऊपर मे बी सपोज लेक्चर्स, ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं और समथिंग एल्स, कुछ भी कर सकते हैं, राइट। और उसकी जो एज है या फिर हम कह सकते हैं वो 5 साल तक चलेगा। तो दैट इज़ द एग्जाम्पल कि अगर आज हम कंप्यूटर ख़रीद के ला रहे हैं, हम तो ये तो नहीं कहते ना कल उसे फेंक देंगे, नहीं। उसकी लाइफ अगर 5 ईयर्स है तो हम उसे 5 ईयर्स तक यूज़ करेंगे। सेम बिज़नेस की कोई लाइफ नहीं होती, जितना लंबा चलाओ चल सकता है। बस एक कंडीशन होती है कि लॉसेस में नहीं जाना चाहिए। This assumption of business allows us to charge from revenues of a period only that part of the asset which has been consumed. इसका मतलब ये है साफ सा कि ये जो assumption है बहुत ज़्यादा important है। और revenue means जो भी हमने सपोज़ अगर 50,000 का हमने कंप्यूटर बाई किया है और वो 5 साल तक चलने वाला है, यानी एक साल में तो हमने 10,000 की ही कंजम्पशन की ना, ठीक है। तो ये हमें हेल्प करता है ऐसे रेवेन्यू को डिवाइड करने में, यानी इनकम को डिवाइड करने में। मतलब हम 10,000 इस साल लिखेंगे एक्सपेंसेस के अंदर, 10,000 सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, ऐसे करते करते हमारे 50,000 कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट इज़ अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। इनका कहना ये है इसमें कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी जो हम अकाउंट्स साल के एंड में प्रिपेयर करते हैं टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस, कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ठीक है। और एसेट और लाइबिलिटी की पोजीशंस देखते हैं कि हमारे पास साल के एंड में कितनी एसेट्स पड़ी हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ पड़ी हैं, राइट। तो वो जो हमारे पास पीरियड होता है वो एक साल का होता है, ठीक है। जनरली वो पीरियड रहता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपको वो जनवरी टू 31 दिसंबर भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। जनरली जो है अकाउंट्स एक साल के बाद प्रिपेयर होते हैं, स्पेशली इन द केस ऑफ सोल प्रोप्राइटर जो हम करने वाले हैं। बट अगर कंपनीज़ हैं बहुत बड़ी बड़ी, उनकी ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो वो मंथली, क्वार्टरली भी अपने अकाउंट्स प्रिपेयर कर सकती है और अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकती है। जो बिग बिजनेस हाउसेस हैं वो जनरली क्वार्टरली अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को निकालते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं, right? So that was all about today's lecture. Thank you so much. Also you can take the ask the doubts in the comment section, and that will be very convenient for me to reply, because I can make a separate video for those doubts. Thank you, and also don't forget to like, share and subscribe.